हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फोर्स में सबसे पहले दे रखा है सोर्सेज एंड फील्ड्स कि मैग्नेटिक फील्ड के कितने सोर्सेज हैं। बिफोर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी शैल रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हमारे पिछले चैप्टर्स के वीडियोस भी अपलोडेड हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 3 के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के वीडियोस हैं, आप उनको पीछे जाके ज़रूर देखें अगर आपको ये आज वाला वीडियो अच्छा लगता है। तो हमने पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा है। वी हैव सीन दैट द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस कैन बी कंसिडर्ड इन टू स्टेजेस। First, the charge Q, the source of the field, produces an electric field E, where electric field is given by this equation जो हमने पहले पढ़ी हुई है, and the field E is a vector field. A charge small q interacts with this field and experiences a force given by this equation. ये भी हम पढ़ चुके हैं। As pointed out in chapter 1, the field E is not just an artifact but has a physical role. It can convey energy and momentum and is not established instantaneously but it takes finite time to propagate. The concept of a field was especially stressed by Faraday and was incorporated by Maxwell in his unification of electricity and magnetism. जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको बताया, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट 1820 में जब उन्होंने देखा तो 1864 में फेराडे ने मैक्सवेल ने अपनी जो इक्वेशंस हैं वो दी, और उन इक्वेशंस में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की इक्वेशंस को कंबाइन करके 4 इक्वेशंस बनाई जो आगे जाके ईएम वेव्स में आप पढ़ेंगे। In addition to depending on each point in space, it can also vary with time. In our discussion in this chapter, we will assume that the fields do not change with time. The field at a particular point can be due to one or more charges. If there are more charges, the fields add vectorially. You have already learned in chapter 1 that this is called principle of superposition. Once the field is known, the force on a test charge is given by equation 4.2. Just as a static charge produces an electric field, the currents or moving charge produce magnetic field. ठीक है, तो जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, तो स्टैटिक चार्ज जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वैसे ही मूविंग चार्जेस या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, again a vector field. It has several basic properties identical to the electric field. It is defined at each point in space, and experimentally it is found to obey the principle of superposition. The magnetic field of several sources is a vector addition of magnetic field of each individual source. अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ लॉरेंट्ज फोर्स का यहाँ एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक रीजन में प्रेजेंट हो और एक चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से उस रीजन में मूव कर रहा हो, तो उस पर लगने वाली टोटल फोर्स उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होती है। दिस फोर्स was given first by H.A. Lorentz based on the extensive experiments of Ampere and others. It is called the Lorentz force. You have already studied in detail the force due to the electric field. If we look at the interaction with the magnetic field, we find the following features. It depends on Q, V and B, charge, velocity and magnetic field. Force on a negative charge is opposite to that on a positive charge. The magnetic force F, Q, V cross B includes a vector product of velocity and magnetic field. The vector product makes the force due to the magnetic field vanish if velocity and magnetic field are parallel or anti-parallel. Theta 0 180 degree पे ये force नहीं लगता है. The force acts in a sideways direction perpendicular to the both velocity and magnetic field. Obviously जब आप दो vectors का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं velocity और magnetic field का, और फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही परपेंडिकुलर होनी है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल और वेक्टर प्रोडक्ट एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.2। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जिस डायरेक्शन में है, नेगेटिव के लिए उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स स्टैटिक चार्जेस पर नहीं लगता है।
The expression for the magnetic force helps us to define the unit of magnetic field. If one takes Q, F and V all to be unity, यानी 1 के इक्वल इनको लें, तो F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी इक्वेशन, जो कि क्यू बी साइन थीटा के इक्वल है, और थीटा इन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो यहाँ से आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज 1 SI unit when the force acting on unit charge यानी 1 coulomb moving perpendicular to magnetic field with a speed 1 meter per second is 1 Newton. So I think ये तो बहुत बेसिक सी एक थ्योरी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. डायमेंशनल एनालिसिस भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, ये चीज़ यहाँ पे काम की है. CGS यूनिट, नॉन SI यूनिट यहाँ पे गॉस है, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के इक्वल है, ठीक है. तो ये तो एक इंडिविजुअल चार्ज की बात हुई. अगले वीडियो में बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक पार्टिकल पे ना देख के हम एक करंट कैरिंग वायर पे अगर फोर्स देखें तो वो कितनी होगी.